Okay, so Ashmit, Yes, sir. now what you do, you go to minimize this window. Yes, open any folder like document or C drive, D drive. Go to any drive. Yes. Yes. Okay, let's suppose you people are having your C programming. You have C programming, and now suppose we are in the lab. What we do, अपने lab में we have to configure into 60 to 70, or we, if you can see that we have in lab जो बच्चे physically आए थे, we have 90 systems in the lab. Now in 90 systems we have to install the Turbo C practical. So if that is the case, during that time we cannot, if हर सिस्टम में जाके मैं टर्बो सी को डाउनलोड करूंगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सेकेंड, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. थर्ड, अगर मैं यूएसबी ड्राइव का यूज करता हूं तो डेफिनेटली वो भी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. So what I will be doing, I know the particular folder, I know what is to be shared, and if everybody is in the same network, I will try to share that folder with everybody sitting in that lab. तो अब इसको, इसका यूज, इसका इंटेंशन ऑफ शेयरिंग अ पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल इन द नेटवर्क इज दैट, because it makes our work easy when we are connected on the same network. Fine. So what we have to do now, we will be targeting that. Suppose that we want to share this Turbo C file folder with a particular, in the particular network. Although you are not connected to any network, you are connected to different networks, you will not be able to see his folder in your system. That is very true, but we will be at least going to check out the steps how we can share that particular folder. Fine. So Ashmit, you right click on the Turbo folder. There, if you can see, there is an option of give access to. Fine. Click on that. Then click on advanced sharing. Fine. Yes, advanced sharing. Click on it. Now share this folder. There is option. हाँ, click on it. हाँ, इसको apply and OK. So can I close it? 1 minute. Go to advanced sharing. You have, okay, you have clicked on it. Okay, okay, okay करो. Yes. Now with this, he, if he would have been in the local network, there will be a different icon for this, where he will see that it is shared with multiple people. Different type of logo will be created, and the particular file is shared in the network. Fine. Now you can close it. So these are the three basic steps for sharing on the network. It is not difficult, it is very simple. In future when you will be in the lab, you can practically perform it, but currently, just for your understanding, I have demonstrated. This will be the fourth practical, part A. First part is about sharing of the folders and file in the network. So steps are same. You have to right click on the folder. एक बार अश्मित वापस एक बार वो steps दिखा दो सबको. You have to right click on the particular folder which you want to share on the network. Go to give access to. Go to advanced sharing. In that sharing option, tab is there. In that, go to advanced sharing. Click on the share this folder. Checkbox will be there. ऊपर वाला. This checkbox you have to check it on. By default it is off. जब आप ये click करोगे, then only particular file will be turned on. और फिर उसमें you can
ऐड, जैसे यहाँ पे दिखा है परमिशन वाला जो टैब दिख रहा है ना बटन, उसमें वो अपन अभी कर नहीं रहे बिकॉज इसमें कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज ही इज नॉट इन द पर्टिकुलर नेटवर्क। जब अपन नेटवर्क में रहते हैं तो वो पर्टिकुलर परमिशन वाइज भी दे सकते हो कि जैसे हमको कुछ कंप्यूटर में ही एक्सेस देना है, बाकी कंप्यूटर को नहीं देना है, तो वी कैन डू दोज काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस हियर। फाइन। तो ये बेसिक स्टेप्स है फॉर शेयरिंग ऑफ द पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर इन द नेटवर्क। ठीक, तो दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी इज अबाउट प्रिंटर। तो अब इसको क्लोज कर दो। अब जाओ कंट्रोल पैनल पे, या डिवाइस एंड प्रिंटर डायरेक्ट भी कर डाले तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट डिवाइस एंड प्रिंटर के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है डिवाइस एंड प्रिंटर। हाँ, हार्डवेयर, ये इसमें कंट्रोल पैनल में हार्डवेयर्स में आएगा। यस, क्लिक। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, we are having 90 systems in the lab. Now we want that only one system should be connected, one printer should be connected with all the 90 computers. So we, in that case, we are not going to install 90 different printers for each and every system. What we are going to do, because it will be a heavy amount of investment will be required in the IT infrastructure, we do not want that to continue. So what we will do, we will install one printer in the system, and with that system we will try to share that particular printer in the network. ठीक है, and but this facility will be running only when we are part of that particular network. ठीक है, रैंडमली आप कोई दूसरे नेटवर्क में कनेक्टेड हो और उसके थ्रू किसी और प्रिंटर में एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, हमको प्रिंटर शेयरिंग करना है। प्रिंटर शेयरिंग कैसे होगा, तो वहां पे देखो एक ऐड अ प्रिंटर का बटन दिख रहा है बेटा ऊपर में। यस, क्लिक ऑन दैट। सो द फर्स्ट स्टेप इज गो टू कंट्रोल पैनल, इन दैट गो टू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। तो उसमें यू आर गोइंग टू सी दिस स्क्रीन विच is currently running in Ashmit's system, and after clicking on add printer it will try to search for the printer first. अब अश्मित केस में, अश्मित you are connected with any printer at your place? No, sir. No, so definitely he is not going to get any kind of outcome from this. So no printer found, No device. no devices found. The option will be of this kind. Practical number 4 that we will be performing. Then practical number 5 is about networking commands. Networking commands, हमने इसको, मैंने आपको ETIT के क्लास में रेगुलर केस में बताया था कि बेसिक 5 कमांड्स फॉर नेटवर्किंग क्या है। हम उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, एंड दैट प्रैक्टिकल विल ऑल्सो बी गेटिंग कंप्लीटेड। तो उसको आप सर्च करो, इसको मतलब मिनिमाइज करो और CMD को सर्च करो, नीचे सर्च बार में टाइप करो CMD। CMD is what? CMD is the command prompt through which we will try to execute different networking based commands. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने सी किया है, देखा है आप लोगों ने। जस्ट एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे, जस्ट रिकॉल के लिए कि ये प्रैक्टिकल नंबर 5 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। तो फर्स्ट थिंग what we have to check, we have to check what is the internet protocol, that is what is the IP of my system. ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए, या मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ या लैन कनेक्शन से हूँ, किस प्रकार का नेटवर्क है, इफ आई वांट टू चेक ऑल दोज थिंग्स, तो व्हाट आई विल डू, आई विल बी टाइपिंग अ कमांड विद द नेम ipconfig. फर्स्ट कमांड इज ipconfig, एडवांस वाला है ipconfig/all। तो ipconfig टाइप करो अश्मित, ipconfig, प्रेस एंटर। ठीक है, नाउ द आउटकम इज कि वो कौन सा उनका IP एड्रेस है। देखो IP एड्रेस भी दिख रहा है, ही इज कनेक्टेड टू अ, देखो IPv4 में अगर देखोगे तो 192.168.29.204 ये जो है ये इनका
लोकल लेवल पे आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब ही इज कनेक्टेड टू अ वायरलेस लैन, ठीक। कहाँ से समझ में आया? तो उसी जहाँ पे वो कनेक्टिविटी के आपको डिटेल्स दिख रहे हैं उसके ऊपर में देखो तो वहाँ पे लिख रहा है। अब ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैक एड्रेस वगैरह के बारे में नहीं दिया है। तो मैक एड्रेस वगैरह के लिए अगर हमको चेकआउट करना है तो हम लोग क्या टाइप करते हैं, IP config all, लिखो IP config /all। तो अब इसमें देखो, इसमें सारी डिटेल आ गई। अब वाईफाई में देखो आपको फिजिकल एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें डिटेल्ड पोर्शन में सबका मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक यूजिंग networking commands your IP address. So this is the first command, that is IP config. We are going to run 5 different commands. तो 5 में से first one is this. Second one is I have to now check whether I am connected to the network or not. अब मैं नेटवर्क में कनेक्टेड हूं तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है, मतलब two system are having communication with each other, then definitely they must be sending some kind of data with each other. That is the मतलब that is how we check whether the systems are connected with each other or not. So whenever there is no network, we first try, or whenever a technical person tries to resolve that, the first thing he will do is try to do the ping. Ping means connecting the system, connecting the connection between the two systems. Fine. So that is the task of ping command. तो टाइप करो ping स्पेस, नॉर्मली हम अपने राउटर को पिंग करते हैं। अब इनके केस में राउटर जो है 192.168.29.1 है, ठीक है। तो आप इसको भी पिंग कर सकते हो या डायरेक्टली, अब ये जैसे नेट में कनेक्टेड है हमको तो पता है, तो आप डायरेक्टली google.com को भी पिंग कर सकते हो, तो वहां से वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक। तो पहले नेटवर्क में हम आईपी एड्रेस को डाल के देखेंगे, क्योंकि हम नेटवर्क के लेवल पे ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आईपी एड्रेस कैसा डालोगे आप? टाइप करो अश्मित पिंग स्पेस 192.168.29.1 जो आपका गेटवे दिखा रहा है, यस, प्रेस एंटर, ठीक है। सो ही इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू हिज गेटवे ऑल्सो, जहां से इनके यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। नेटवर्क में नॉर्मली कैसा है, हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे रहते हैं। जो इनका गेटवे है वो एंट्री पॉइंट है ना। हमने ये ETIT में जब अपन थेरोटिकली देख रहे थे तो मैंने ये सारी चीज़ें उस वक्त बताई थी। तो वो गेटवे पे, एंट्री पॉइंट पे अगर हम कनेक्टेड हैं तो ही हम बाहर जाके किसी नेटवर्क में मिल सकते हैं। इंटरनेट इज व्हाट? कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अब उन नेटवर्क्स में वो कनेक्टेड रहने के लिए क्या चेक करना है? पहले हम हमारे गेटवे से कनेक्टेड हैं क्या, तो गेटवे से ही इज कनेक्टेड। नाउ वेदर ही इज इन अ पोजिशन टू एक्सेस द इंटरनेट और नॉट, तो अगेन व्हाट ही विल डू, ही विल टाइप पिंग स्पेस google.com। अश्मित वो टाइप कर लो, ठीक है। पहले उसने लोकल नेटवर्क में चेक किया, नाउ ही इज ट्राइंग फॉर आउटसाइड नेटवर्क, तो दैट इज google.com, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द गूगल्स आईपी एड्रेस। अगर गूगल का आईपी एड्रेस पता चल गया सर्वर का तो आप गूगल को चुगल बना दोगे, तो वो आपको नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए वी कैन डायरेक्टली गो टू द URL ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक। तो दैट इज द आउटकम। अब इसमें आउटकम में क्या है? आउटकम में देखो आपको दिख रहा है कि 0% लॉस्ट, डेटा सेंट 100%, तो दैट इज पैकेट्स वो सेंड करते हैं जस्ट फॉर चेकिंग। तो उस प्रकार का कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ। दिस इज द सेकेंड कमांड इन नेटवर्किंग विच इज यूज्ड फॉर चेकिंग अप द कनेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। फाइन। देन थर्ड, you have to check out the different routes कि हमारा डेटा को, एक मिनट मेरे को दिख नहीं रहा है ये अनुराग अभी, हाँ पिंग पाथ, हाँ ठीक है, मारो एंटर। सर उस पर आईपी एड्रेस भी डालना था ना? हाँ आईपी एड्रेस डालना है आपको गेटवे का, हाँ हाँ, मारिए एंटर। ओके, पिंग पाथ इज नॉट पाथ रिकॉग्नाइज्ड। पिंग करो, पाथ पिंग करो, पाथ पिंग और वो डालो।
ठीक है, तो पहले उन्होंने इनका आईपी एड्रेस लिया क्योंकि डेटा जनरेट कहाँ से हुआ, इनके सिस्टम से। तो फर्स्ट हॉप इज जहाँ से डेटा जनरेट हुआ, दैट इज 0th पॉइंट। तो वहाँ पे देखो 0 पे डेस्कटॉप दिखा है, इनके सिस्टम का आईपी एड्रेस जो हमने ऊपर देखा था आईपी कॉन्फ़िग में, वही आईपी एड्रेस यहाँ दिख रहा है। सेकंड इज ही इज कनेक्टेड टू द रिलायंस आईफिल, है ना, आपका रिलायंस जियो वाला है क्या? यस सर, जियो। ओके, तो वो जियो का जो गेटवे है, जो जियो का गेटवे जो इनके यहाँ पे कनेक्टेड है, या जिसके थ्रू ही इज पार्ट ऑफ दैट जियो नेटवर्क, एंड उस नेटवर्क का जो एंट्री पॉइंट है वो एंट्री पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो नाउ ही इज कनेक्टेड, आपके घर पे शायद राउटर रखा है, करेक्ट है ना? यस सर। यस, तो इसीलिए देखो 0 एंड 1 की हॉपिंग हुई है सिर्फ ये। अब ये क्या है, इनके घर में ही वो पूरा सिस्टम है, इसीलिए वो दो सिस्टम का नेटवर्क चेक हो रहा है। अब हमको क्या चेक करना है, हम नेटवर्क के बाहर को चेक करेंगे, बाहर यानी कि google.com। सेम कमांड अब गूगल के लिए डालो। तो इसमें ये फर्स्ट 2 स्टेप्स तो वही रहेंगे, लेकिन उसके साथ और कितने नेटवर्क के थ्रू वो डेटा जा रहा है वो भी अब हमको समझ में आएगा। pathping google.com। Definitely it navigates to different it takes hops मतलब अलग अलग सिस्टम में वो चेंज होता है, स्विच होता है, डेटा वहाँ पे ट्रांसमिट होता है। तो वो पर्टिकुलर स्टेप्स कहाँ कहाँ पे जा रही हैं उसको वो चेक करता है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो इनके इसमें ही इज़ नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द पर्टिकुलर नेटवर्क, लेकिन बहुत सारे लोग जो वायर्ड नेटवर्क में रहेंगे ना, उनके इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स दिखेंगे। नाउ ही इज़ कनेक्टेड टू डायरेक्टली टू दैट गेटवे, और वो गेटवे से वो डायरेक्टली किसी और नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। तो वो दूसरे नेटवर्क का एक्सेस या उसका आईपी एड्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका देखो सेकंड मतलब फर्स्ट वाला जो है वो उनके डिवाइस का IP6 वर्जन उसने भेज दिया। ठीक है, आईपी एड्रेस अगर आप देखोगे 1 नंबर पे, उसके बाद 2 पे जो है स्टार 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 दे दिया। व्हाट दैट स्टार 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 मीन्स, there are many different hopping which has happened during the 25 second of time period which system has taken to check out the path for it। तो उसको वो ट्रेस आउट करने के लिए नाउ इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, है ना, कोई ऐसा डायरेक्टली नेटवर्क में ओपन करके नहीं रखता है। तो वो सारी चीज़ों को क्लोज्ड लूप में है, इसलिए नाउ इट कैनॉट बी ट्रेस्ड आउट। तो उसकी सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते। लेकिन जो बड़े नेटवर्क हैं, जैसे कि नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं और वो हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड हैं, उन जगह पे हम इस प्रकार की हॉपिंग में मल्टीपल पाथ कम से कम 5 to 7 तक के वो स्टेप्स तक हम गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमको अलग अलग आईपी एड्रेस मिलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप फॉर चेकिंग आउट दी टू विच सिस्टम, through which systems we are connected to the particular XYZ system। ठीक, तो होस्ट नेम, हाँ, मारवेंट। ठीक है, तो व्हाट ही कैन गेट हिज नेम। अब ये नेम कहाँ पे है, आप इसके ऊपर में देखो, जब हॉपिंग वगैरह के स्क्रीन पे जाओगे तो जो डेस्कटॉप -09430H जो दिख रहा था वो क्या है, इट वॉज द सेम विच यू हैव रिसीव्ड हियर। ये दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो you are going to see both the things as same। what it is the name given to his system in the particular network। नेटवर्क में वो सिस्टम इस नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो यू कैन इंडिकेट, यू कैन आइडेंटिफाई द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। जैसे आप लोगों का क्या है, आप लोगों का रोल नंबर भी है, आप लोगों का नाम भी है। तो डेफिनेटली मैं रोल नंबर से भी कॉल आउट कर सकता हूँ, मैं नाम से भी कॉल आउट कर सकता हूँ। On the same line here also we can call from both the side, we can make use of IP address as well as we can make use of this desktop name, that is host name। ठीक है, तो that is the first
सेकंड, थर्ड, फोर्थ कमांड हुआ ना ये अपना, ठीक है। हाँ, मारो एंटर। what it gives me the connection, और वो TCP/IP जो मैं बताया आपको, TCP/IP प्रोटोकॉल का जो चेकिंग है, मतलब ये अब बहुत हाई लेवल का हो गया क्योंकि हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा नहीं है, लेकिन ये उस नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है, जो TCP/IP प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन करता है, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करता है उसका ट्रेसिंग आउट के लिए ये एक पर्टिकुलर कमांड है जिसका नाम है नेट स्टैट। नेटवर्क के स्टैटिस्टिक्स को वो आउट लाता है जहां जहां पे हमारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है, ठीक है, उनके साथ। तो वो इसमें अगर आप देखोगे इसके पैरामीटर्स में, फर्स्ट वन इज प्रोटोकॉल। ये बाय डिफॉल्ट इट इज अ प्रोटोकॉल, इट इज फॉर TCP/IP प्रोटोकॉल ओनली, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट सब क्या है, TCP है, ठीक है। लोकल एड्रेस इज व्हाट, with the systems with which we are communicating. So first system is his own desktop, the second system is the gateway through which everything is getting matched up, है ना, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये इन सारे चीज़ों का यूज़ करके कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। लास्ट में जो स्टेट दिख रहा है दैट इज कनेक्शन स्टैब्लिश्ड। और फिर आपके इसमें व्हाट्सअप भी चालू है क्या अश्मित? यस सर। है ना? सर वो देखो मेरे को सब इससे अभी इसमें लिंक। दिख रहा है कि आपने क्या क्या कनेक्शन स्टैब्लिश, जो आपके एक्टिव पेजेस हैं वो व्हाट्सअप है, और एक और ये तो शायद मेरे को लगता है ये अपना लोकल ये जो चल रहा है वही है, एक यस आपने सर। नॉट रिस्पॉन्स मोड में है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो भी हमारे प्रोसेस, कौन से प्रोसेस, कंप्यूटर के प्रोसेस नहीं, इंटरनेट या नेटवर्क में कनेक्टेड जो प्रोसेस हैं उसके लिए TCP/IP प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो काम है वो क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करना। ये सब हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स के जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये सारी चीजें पढ़ी है। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब क्या, व्हाट्सअप का एक ब्राउजर जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस कनेक्टेड है कि नहीं, उसमें कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं, तो उसको ट्रेस आउट ये कहां से हो रहा है, विद दिस। तो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट नंबर है, उनके कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट है, और फिर वो उसके साथ चेकआउट करता है कि वेदर इट इज़ कनेक्टेड और नॉट। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो, या कहीं पे कुछ जो नॉट एक्टिव या इनएक्टिव मोड में चला गया है, तो देखो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, लास्ट थर्ड में आपको क्लोज वेट दिख रहा है। तो दैट इज़ नथिंग बट दैट काइंड ऑफ सिस्टम कि जिसमें वो चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं आया उसका वो बता रहा है, ठीक। तो दिस इज हाउ, दिस इज द फिफ्थ कमांड विच कैन बी यूज्ड फॉर द नेटवर्क मैनेजमेंट एंड नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग, वेयर वी एक्चुअली प्रैक्टिकली डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो अब आप लोगों को ये पांचों कमांड का वन लाइन ब्रीफर, एक ब्रीफ में वन लाइन, और इसका स्क्रीनशॉट, किसका स्क्रीनशॉट, ये पांचों कमांड के आउटकम का स्क्रीनशॉट आपको प्रैक्टिकल में लिखकर वैसा प्रैक्टिकल आपको वहां सबमिट करना है। क्लियर हो गया? दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अदर स्टूडेंट्स, अश्मित तो कर रहा है तो प्रॉब्लम इसको तो समझ में होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ। क्लियर है? यस। Sir, what is the fifth command? फिफ्थ कमांड इज दिस नेट सेट। Let's start. Sir, and fourth is हाँ, host name. स्टैटिस्टिक्स, हाँ हाँ, And then fourth is host name. होस्ट नेम, यस करेक्ट। Yes, okay. देन Thank you, sir. पाथ, हाँ, ठीक, ओके। सो दीज आर दी 5 बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। दिस इज द बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स, ठीक है। बाद में टेलनेट वगैरह वो एडवांस में है, मैंने शायद ETIT जब पढ़ा रहा था तो उस वक्त आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया था उसका। तो वो टर्मिनल नेटवर्किंग वगैरह भी नेटवर्किंग के ही कमांड्स है, जिसमें हम यूजिंग दैट वी ट्राई टू गेट इनटू सम अदर सिस्टम। तो वो सब ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के हैं, उसको बेसिक लेवल पे नहीं आते हो। तो बेसिक में ये 5 कमांड हैं, ठीक। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 5। नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिकल नंबर 6. In practical number 6 and 7, it is based on the same topic.
The topic is, according to your curriculum, they have mentioned about only MATLAB. So we will just do the overview of MATLAB, and there is one online MOOC course on that you have to complete. Fine. So that is your practical number 6 and 7. In 6 you will do the study and steps for installation of MATLAB, and 7th is the MOOC course. तो now you can close this, Ashmit. CMD विंडो क्लोज कर लो. बाद में आपको एक बार और कमांड अगर रन करना पड़ेगा, ये है कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो थोड़ा सा एक बार मेहनत और कर लेना. अब इसमें ना न्यू टैब में ओपन कर लो. यहाँ पे आप ये है मैटलैब यूनिवर्सिटी. मैटलैब डालो तो मैटलैब में ही दिख जाएगा शायद. मैटलैब LAB. हाँ, मैटलैब ऑनलाइन. ठीक है. हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो. फर्स्ट वाले पेज क्लिक करो. इंडिया. करेक्ट. ठीक है. स्टार्ट यूजिंग मैटलैब ऑनलाइन. अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा. ठीक है. साइन इन करने को बोलेगा. तो इसमें एक मिनट इसको बैक करो. 1 मिनट. एकेडेमिया दिख रहा है क्या ऊपर में आपको? ऊपर में मेन्यू में. यस सर. हाँ, उस पर क्लिक करो. हाँ, स्क्रॉल करो. यस. तो इसमें जो मैटलैब ट्यूटोरियल दिख रहा है आपको, लर्न द बेसिक्स, है ना? मैटलैब ट्यूटोरियल. यस, इसके ऊपर क्लिक करो. और ये सबको करना है. मोबाइल पे भी ये सारी चीज़ें होती है. ठीक. अब इसमें फर्स्ट वन जो है, स्क्रॉल करो. हाँ, बस. मैटलैब फर्स्ट वन जो है, ये मैटलैब ऑन रैम्प. इट इज़ अ बेसिक्स अबाउट मैटलैब. ठीक है. तो उसको आपको करना है. इसमें 14 डिफरेंट मॉड्यूल्स है. As data and visualize ideas that lead to a better understanding of complex systems. ठीक है. ये अब मतलब अश्मित, यू आर एबल टू हियर मी? ओके, शायद मेरा नेटवर्क स्टेबल नहीं है. एक्चुअली ये मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो इसके कारण वो चला गया. तो यस, अब इसमें कैसा है, साइन इन करना पड़ेगा. अब ये साइन इन किससे करना पड़ेगा? ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही आपको साइन इन करना पड़ेगा. और बहुत लंबा कोर्स नहीं है. इट इज़ अ स्मॉल कोर्स ऑफ 2 आवर्स. अब इसके प्रैक्टिकल के सबमिशन में पहला वाला तो थ्योरी है, जिसमें आप व्हाट इज़ मैटलैब और उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस का है. तो वो तो आपको आपके सेल्फ मोड में आप उसको सर्च कर सकते हो इंस्टॉलेशन के लिए. आई डोंट फील कि कुछ मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की गरज है. एवरीबडी माइट बी नोइंग कि कैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो. इसलिए ना ही मैं मैटलैब के इंस्टॉलेशन का, ना ही एंटीवायरस वगैरह के इंस्टॉलेशन का प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आई होप कि आप लोग खुद कर सकते हो ना. इंस्टॉलेशन इज नॉट बिग डील. स्टूडेंट्स, आप लोग रिस्पॉन्स दो, फिर नहीं तो मैं उसके लिए फिर प्लान करूँगा एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, यस सर. बाप रे, बाकी लोग कर लेंगे ना. कर लेंगे सर. यस.
तो वो आप लोग अपने इस पे कर लेना, बस दैट Yes, इज sir. इट। अब इसमें साइन इन करते वक्त क्या करना है आपको, साइन इन करके आपको आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी मतलब कॉलेज का जो है ना उस ईमेल आईडी से करोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा, अदरवाइज वो ट्रायल पीरियड का रहेगा और अननेसेसरी आपको तकलीफ होगी। ठीक, तो हर एक को अपना उसके हिसाब से आपको करना है, तो आप साइन इन करके इसमें कर सकते हो और उसको चेकआउट कर सकते हो कि किस मॉड्यूल से कौन से ईमेल, आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसका यूज़ करके आप पूरा लॉगिन करके अपना मैटलैब ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर चीज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 आवर्स की है। ठीक है, जो बहुत शार्प है उनके लिए ये शायद 1 आवर में हो जाएगा, लेकिन हाँ नेटवर्क भी स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि हम लोग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू टेक गुड स्ट्रांग अमाउंट ऑफ नेटवर्क। अगर नेटवर्क आपका प्रॉपर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम जाएगी ये पर्टिकुलर मूक करने में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को प्लानिंग करना है एंड यू हैव टू डू इट। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड 7, जिसमें प्रैक्टिकल नंबर 6 इज अबाउट स्टडी ऑफ मैटलैब, प्रैक्टिकल नंबर 7 इज मूक कोर्स ऑन मैटलैब ऑन रैम्प। फाइन, तो मैं ये इस हिसाब से वो टाइटल आपके इसमें भी लिख दूंगा जिनोमियो के पोर्टल पे। और आपको सबमिट क्या करना है प्रैक्टिकल नंबर 7 में, यू हैव टू सबमिट योर सर्टिफिकेट। इसका राइटअप नहीं चाहिए मेरे को, उसका एक स्क्रीनशॉट आपके लॉगिन का जिसमें आपने वो एक्टिविटी की है, फिर उसके बाद आपको ये कंप्लीशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन वो सबमिट करना है। ये दोनों चीज़ एक वर्ड फाइल में आपको पेस्ट करके सबमिट करना है पीडीएफ बना के। ठीक है, सो दैट विल बी योर प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 6 will be regarding the theoretical part where you will have to just take the screenshot of your particular system और उसके steps क्या क्या हैं वो तो आप इसके पोर्टल पे जाओगे तो ही वो आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, कहीं और कुछ करने की गरज नहीं है। एंड मैटलैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिकॉज इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको ब्रीफ दे दे रहा हूँ इसका कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैटलैब, अब ये मत सोचना कि सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का है, नथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इन टूडेज टाइम इंजीनियरिंग इज कंबाइंड पैकेज ऑफ एवरी फील्ड। अगर आप किसी एक फील्ड को पकड़ के बैठ गए और सोचे कि इंजीनियरिंग है तो यू विल बी लैंडिंग अप नोवेयर। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज चाहिए आज की डेट में इफ़ यू वांट टू हैव अ हायर ग्रोथ इन योर फ्यूचर करियर। तो विद दैट पर्सपेक्ट this particular system, this particular software has been introduced in your second year itself. Fine, अब ये क्या है, इस सॉफ्टवेयर में कैसा है, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से, लेट सपोज यू आर प्लानिंग फॉर सम IoT डिवाइस, फ्यूचर में आप एक IoT डिवाइस फाइनल ईयर में बनाने वाले हो जिसमें आपको कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेटअप करना है। अब उस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेटअप करने के लिए यू हैव टू परचेज ऑल द मटेरियल्स। उसके बाद जब आप उस पर ट्रायल एंड एरर करोगे, अगर उस वक्त वो समझ लो वो सिस्टम डैमेज हो गया या उड़ गया सर्किट, तो वो सिस्टम जो है आपका, जो भी आपका आईसी बोर्ड रहेगा वो तो खराब हो जाएगा, इट विल नॉट बी एनी मोर ऑफ यूज, वो पैसा हो जाएगा आपका वेस्ट। नाउ टू ओवरकम दैट, what this software provides, this provides complete virtualization of those kind of setups। हम उसको सेटअप करके उसका परफॉर्मेंस वर्चुअली चेक कर लेते हैं। अगर कुछ लग रहा है हमको कि नहीं ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाएगा, हम लोग वर्चुअली इसको करेंगे, हमारा इक्विपमेंट का लॉस नहीं होगा। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज विच दिस मैटलैब प्रोवाइड्स इन द फील्ड ऑफ दिस वर्चुअलाइजेशन, वेयर वी कैन जब आप इसका करोगे, ये जब कोर्स करोगे 2 आवर्स का, तो उसमें आप देखोगे तो आपको उसमें डायोड वगैरह के साथ कनेक्शन वगैरह का बताएगा वो, तो उसमें आप लोग जब करोगे तो यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ पे मिलती हैं। ठीक, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड सिस्टम और सॉफ्टवेयर विच इज़ क्रिएटेड, बट ये लेकिन ये पेड है, बहुत महंगा है। तो डेफिनेटली इसका अल्टरनेटिव जो ओपन सोर्स में है वो
साइलैब है, ठीक है, जो लिनक्स वगैरह के इसमें जो चलता है, तो इट इज़ ऑल्सो दैट मच, लेकिन इसमें जितने सारे फीचर्स हैं उतने फीचर्स इसमें नहीं है। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑलमोस्ट नियर टू डॉट नेट है। जो डॉट नेट प्रोग्रामिंग फील्ड है उसमें जिस प्रकार की कोडिंग होती है उस प्रकार की ही कोडिंग इस मैटलैब में होती है, ठीक है। इसमें भी कोडिंग वगैरह हमको करना पड़ता है। जब आप जैसे आर्डिनो वगैरह के बारे में अगर आपने सुना होगा कि हम आर्डिनो का यूज़ करके हम आईओटी वगैरह का कुछ इसमें कोडिंग करते हैं और उसमें इम्प्लांट करते हैं फिर वो कोड, और फिर जाके उसको अपने सिस्टम के थ्रू रन करते हैं, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है नियर अबाउट सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम कैन बी अचीव्ड विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल इन टूडेज टाइम एंड दैट्स वाई इट इज़ दैट मच पॉपुलर। तो इसमें जितने सारे फीचर्स हैं वो साइलैब में उतने नहीं हैं, इसीलिए गो फॉर दिस, इसको ट्राई करो, हैंड्स ऑन लो, इसका खरीदने की गरज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो कोर्स है ये वाला कोर्स करके उसमें जो टास्क दिए हैं वो टास्क अगर आपने किया तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वॉट एवर थिंग्स जस्ट नाउ आई हैव डिस्क्राइब्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल नंबर 6 and 7, ठीक। अब जो 8th प्रैक्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ, एक मिनट, आई विल जस्ट गो थ्रू द सिलेबस। इट इज रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग पीसी फ्रॉम वायरस, स्पाईवेयर एंड मालवेयर। तो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए वी विल बी ट्राइंग टू इंस्टॉल विंडोज़, नहीं, विंडोज़ में भी रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप नहीं तो अभीच मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करते हैं, अभीच मैं बता देता हूँ इन ब्रीफ, फिर जाके आप लोग उस हिसाब से उसको फिर इम्प्लीमेंट कर लेना। अश्मित, आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस है? इससे क्विक खेल का था मतलब आई थिंक इट्स एक्सपायर नाउ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, एक मिनट उसको ओपन कर लो तो भले, मतलब ओपन कर लो आपका वो। हाँ, तो इट इज़ नाउ इन हिस केस ही हैव टू रिन्यू दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ये क्या है? इट इज़ एन एंटीवायरस। एंटीवायरस, अब इस एंटीवायरस में प्रोटेक्शंस उसको सारे प्रकार के थ्रेड से मिलेंगे। अगर आप इसके होम स्क्रीन पे देखोगे तो वहाँ पे आपको ये दिख रहा है होगा कि जिसमें ये क्लियर कट मेंशन है दैट इट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट मालवेयर एज वेल एज वायरस। फाइन, सो दिस इज देयर। देन रैंसमवेयर मीन्स वानाक्राई वाला जो अटैक है जिसमें क्रिप्टो करेंसी जब तक आप दोगे नहीं, बिटकॉइन जब तक दोगे नहीं तब तक वो आपके सिस्टम का डेटा देखो रिकवर नहीं होता था। तो वो उस प्रकार के रैंसमवेयर जो है जिसमें मनी बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और कुछ अनवांटेड वेबसाइट्स विच आर हार्मफुल, विच में हैव सम काइंड ऑफ अदर अनवांटेड इलीगल एक्टिविटीज़, या वो सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से उतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्शन के लिए वो सारे ग्राफिकली यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स उसके दिख रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है, इस एंटीवायरस ने क्या क्या किया। नाउ दिस इज अबाउट दैट। इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो। अब यही जो जैसे टोटल प्रोटेक्शन या इंटरनेट सिक्योरिटी वगैरह अगर आपने सुना होगा, ये सब क्या है? एंटीवायरस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या मॉड्यूल है। तो इसमें आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि जिसमें आप डायरेक्टली पूरा प्रोटेक्शन ले सकते हो रिगार्डिंग द सेम। पूरा प्रोटेक्शन यानी कि जिसमें आपके स्पाईवेयर से लेके तो सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। अब इसमें प्रोटेक्शन पे क्लिक करो तो अश्मित, हाँ, अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए
दिस इज़ अ कंप्लीट डिटेल जिसमें एक मेरे को ये बाकी चीज़ें तो हमने डिस्कस की है, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है फायरवॉल प्रोटेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का अपना खुद का भी कंट्रोल पैनल में फायरवॉल है, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन विंडोज़, और हम विंडोज़ को रेगुलर रोज आना अपडेट नहीं करते, और वो रोज अपडेट होता भी नहीं, बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सिस्टम। तो नॉर्मली व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज, वो अपना खुद का एक फायरवॉल बनाता है। नाउ फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक प्रकार का प्रोटेक्शन है जो हमारे सिस्टम में कोई भी बाहर से जो डेटा आ रहा है, वो डेटा आने के पहले इट इज गोइंग टू चेक आउट वेदर दैट डेटा इज गुड इनफ या सेफ इनफ, देन ओनली इट विल अलाउ टू एंटर इनटू द सिस्टम। अगर उसको लगा कि नहीं ये अनवांटेड कुछ एक्टिविटी है, इट शुड बी ब्लॉक्ड, तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल इज द थिंग विच विल स्टॉप दैट। ठीक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस में रहता है, एंटीवायरस का यूज़ करके उसमें हर एंटीवायरस प्रोवाइड करता है। इफ़ नॉट एंटीवायरस देन विंडोज़ में भी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। एक बार अश्मित कंट्रोल पैनल में चले जाना या फायरवॉल सर्च कर लेना नीचे में, तो वहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल। ठीक है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। विंडोज डिफेंडर इज बाय डिफॉल्ट नाउ इट इज इनएक्टिव इन हिज केस, द रीजन इज बिकॉज ही हैज हिज ओन एंटीवायरस। बाकी लोगों के सिस्टम में जिनके इसमें नहीं रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट विंडोज हैज प्रोवाइडेड दिस डिफेंडर विच एक्ट एज अ एंटीवायरस एज वेल एज फायरवॉल। ठीक, ये विंडोज ने 2008 ऑनवर्ड्स, विंडोज 8 के बाद में 7 से चालू किया था। 7 से उसने पहले एक अपना डिफेंडर लाया था जिसका नाम था विंडोज डिफेंडर। इट वाज प्लेइंग फॉर एज अ एंटीवायरस, और फायरवॉल एक अलग था, ये दोनों अलग कॉम्बिनेशन थे। फिर उसको उसने क्लब कर दिया फ्रॉम विंडोज 8, जिसको नाम दे दिया उसने विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, जिसमें एंटीवायरस एज वेल एज फायरवॉल दोनों को क्लब करके उन्होंने ये सिस्टम प्रोवाइड किया है। लेकिन इज इट सेफ देन क्विक हिल वगैरह? दैट इज अंडर द क्वेश्चन मार्क। पीपल का जो एनालिसिस है, या आप अगर गूगल सर्च करोगे इन सब पे, तो आप समझ जाओगे कि नहीं, ये विंडोज़ के जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको बाकी लोग उस लेवल पे ट्रीट नहीं करते या उतना सेफ नहीं समझते। ठीक है, सो दैट इज द लूप होल ऑफ दिस विंडोज सिस्टम, और इसको ओवरकम करने के लिए वी नीड टू हैव अ पर्टिकुलर एंटीवायरस सिस्टम विथ अस। तो वो एंटीवायरस सिस्टम, जैसे अश्मित मिनिमाइज कर दो ये वाली स्क्रीन, जो सिस्टम है वो उसमें लिखा ही हुआ है कि इन्होंने एंटीवायरस जो इंस्टॉल किया है, वो एंटीवायरस एक प्रिवेंटिव मेजर है जो इन्होंने अपने सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए लिया है। तो वो चीज़ का सिस्टम, वो चीज़ के लिए आपको भी अपने अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालना है। अब एंटीवायरस अलग अलग टाइप के हैं, AVG वगैरह है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, लेकिन आर दे दैट स्ट्रॉन्ग? दैट इज अगेन अंडर द क्वेश्चन मार्क। कोई भी चीज़, कोई भी बेटर ऑप्शन के लिए यू हैव टू पे फॉर योर सिस्टम प्रोटेक्शन। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो जिसमें आपका इकोनॉमिकल फंडिंग वगैरह कुछ जुड़ा है, तो डेफिनेटली आपने पेड वर्जन एंटीवायरस बाय करके उसको अपने सिस्टम में रखना चाहिए। दैट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइन, तो these all are the things related to the practical number 8। अब practical number 8 में क्या करना है? only you have to installation of antivirus, बस that is the only title। एंटीवायरस को इंस्टॉलेशन के लिए क्या प्रोसेस है वो करना है। जिसके इसमें है गुड, जिसके इसमें नहीं है, AVG इज़ द फ्री एंटीवायरस, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और उसका स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट आपको लेकर उसके स्टेप्स डालना है। 4 to 5 स्टेप्स रहते हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, तो 4-5 स्टेप के स्क्रीनशॉट लेकर आपको सबमिट करना है वो प्रैक्टिकल। दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 8। अब बचा मेरे तरफ से प्रैक्टिकल में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल है, दैट इज़ नेटवर्क में प्रिंटर शेयरिंग। अब करंटली इनकेस में वो कनेक्टेड नहीं था, तो डेफिनेटली
अपन वो प्रैक्टिकली मैं आपको बता नहीं पाया कि कैसे अपन आईपी एड्रेस के थ्रू सिस्टम का डिटेक्ट करते हैं और प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है। तो वो मैं दिखाऊंगा जब when I will be in the college, then at that time we will be demonstrating. Clear as student? Yes, sir. अब ये प्रैक्टिकल के सबमिशंस के लिए आपको डेट जो है, जैसे टुडे इज 2nd, तो टिल नेक्स्ट वेडनेसडे विल इट बी पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज क्योंकि बहुत राइट अप वर्क कुछ नहीं करना है, सब डिजिटल फॉर्म में आपको सबमिट करना है। अगर आपने 2 दिन भी दिया तो मेरे ख्याल से ये सारे चीज़ें आप कंप्लीट करके सबमिट कर पाओगे। तो विल इट बी पॉसिबल टिल 9th? Sir, can you please make it Saturday, next Saturday? Next Saturday, you want till 12th? Yes, sir. Okay, I don't have issue, but I feel your sessionals might be starting, so I don't know, matlab probably from Monday you might be having your online exam for 2nd sessional. So they told after 15th, no? After 15th, okay, तो it might be after, I was thinking of 14th, तो शायद वैलेंटाइन के कारण छोड़ दिए होंगे, आई डोंट नो। ठीक है तो जो भी है ठीक है, तो वो उस रेंज में था, इसलिए मैं बोला कि शायद 1 वीक आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, नो इश्यूज। अगर आपको कंफर्टेबल है, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ 12th, देन आई डो नॉट हैव एनी इशू। आप टिल 12th आप वो बची हुई चीज़ों को सबमिट कर देना। व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीबडी एग्री विथ इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great then you can submit it till 12th. Okay, so from my side for today it is done. If you have any queries you can ask, or if you want to discuss anything you can ask. Ashmit, thank you for sharing your screen, and thank you for demonstrating us. So students, any queries? सर प्रैक्टिकल नंबर 6 में करना क्या एक्चुअल में? बेटा प्रैक्टिकल नंबर 6 में आपको स्टडी ऑफ मैटलैब, इट इज ओनली स्टडी ऑफ मैटलैब सॉफ्टवेयर। तो इन ब्रीफ मैटलैब क्या है वो तो आपको वेबसाइट पे उसके मिल जाएगा, है ना। अबाउट सॉफ्टवेयर अगर आप जाओगे तो उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यू हैव टू सबमिट अ थेरोटिकल पार्ट ऑफ दैट और उसका एक स्क्रीनशॉट। तो वो स्क्रीनशॉट तो गूगल करके भी आप कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको इंस्टॉल करो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर भी बड़ा है, उसको डाउनलोड करने जाओगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। इट इज़ नॉट दैट ईजी टास्क। तो आप एक नॉर्मल गूगल पे स्क्रीनशॉट उसका मिलेगा, वो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके अभी आ रही है क्या? यस सर। तो आपको क्या करना है, उसके पोर्टल पे जाना है। अबाउट दैट सॉफ्टवेयर यू हैव टू लर्न। ठीक है, क्या है? इट इज़ अबाउट ओनली स्टडी ऑफ मैटलैब सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर में क्या है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसके पोर्टल पे ही मिल जाएगा वो। उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट इफ़ यू हैव, वेल एंड गुड, नहीं है तो आई विल शेयर इट। हर कोई वही एक स्क्रीनशॉट डाल देना है, उसका जो होम पेज रहता है मैटलैब का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो आप लोगों को उसमें सबमिशन के वक्त वो एक ऐड ऑन कर लेना है। ठीक, क्योंकि उसके इंस्टॉलेशन वगैरह बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और वो लीगल पेड सॉफ्टवेयर है। तो वो आप डायरेक्टली अगर कोशिश करोगे कि मैं इंस्टॉल करती या करता तो वो हो तो जाएगा इंस्टॉल, लेकिन वो ट्रायल रहेगा और आप बोलोगे कि सर ने क्या सॉफ्टवेयर डालने को बोल दिया कि मेरा सिस्टम ही स्लो हो गया। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोलोगे। तो इसलिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट एवरीबडी शुड इंस्टॉल इट। अगर है पॉसिबिलिटी है कि आप वो ट्रायल एंड एरर कर सकते हो,
इट विल बी वेरी गुड। आप वो पूरा सिस्टम करके देखो, अगर नहीं है तो मैं जो स्क्रीन शेयर करूंगा उससे ही आप प्रोसेस कर लेना। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज Okay, फॉर sir. प्रैक्टिकल नंबर 6 Yes, sir. एंड प्रैक्टिकल नंबर 7 इज अबाउट दैट कोर्स, वो जो 2 आवर्स का जो कोर्स है वो। क्लियर? So means in seventh practical we have to submit the certificate after सर्टिफिकेट एंड completion of that स्क्रीनशॉट, course. यस, एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, Okay, sir. yes, yes. And today your 5th lecture which is there, it is I think वो मैडम का है, गोलर मैम का। तो for in that lecture from my side I have instructed, now it's your task। तो आप लोग उस 5th लेक्चर में वो मैटलैब प्रोसेस के ऊपर वर्क ऑन कर सकते हो, मतलब वो कोर्स के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, आई विल हैव अ डिस्कशन विथ गोलर मैम और मैं उनको बता दूंगा, यू विल बी फ्री फॉर दैट पर्टिकुलर स्लॉट टू डू दैट वर्क। मैं एक रिमाइंडर मैसेज भी डाल दूंगा कि आपको वो करना है ड्यूरिंग दैट स्लॉट। ठीक है, और Sir, एनी अदर sir, डाउट? यस, यस अनुराग। can you send that course link? कोर्स लिंक के साथ भेजूं? ठीक है, मैं कोर्स लिंक के साथ भेजूंगा, लेकिन सबको ऑफिशियल ईमेल आईडी से करना है, अदरवाइज आप लोग बोलोगे कि वो हो ही नहीं रहा है सर, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रहा है। यू हैव टू यूज ऑफिशियल ईमेल आईडी सो दैट इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? Yes, sir. यस, ओके। सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। आप लोग अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, मेरे को ब्रेक जो देना था वो मैंने तब नहीं दिया बीच में, तो अभी आप 10 मिनट्स का, दैट मीन्स 20 मिनट्स का आप अभी ब्रेक ले सकते हो।